Good evening to all the participants who are here for this session. And I am Dr. Bharti. I am the convener of the Innovation Council of IMT CDL. And we have been conducting a series of workshops, online sessions, talks to guide the students with regard to how they can convert their ideas into reality. So this is last time we had a session on the role of IPR when you start your venture. So what is the significance of intellectual property right? If you can recall, we discussed about how to get a patent and how to conduct business, taking into account the existing realities and the regulations of a country. So today our emphasis would be on delving upon the key elements, some important pointers that should be kept in mind when you have to start your venture, or if you think in terms of getting into a startup, then what are the primary points that you should keep in mind. तो कई बार होता है कि हमारे ज़हन में कोई आइडिया होता है, हम चाहते हैं कि हम उसको एग्ज़ीक्यूट करें, पर हमको थोड़ा-से उसको एग्ज़ीक्यूशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी होती है। हम सोचते हैं कैसे शुरू करें? किस तरह से हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या अब हमें ये शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मार्केट इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं कहीं मैं इतना समय लगाऊँ, मैं इतना पैसा लगाऊँ और मेरा जो वेंचर है ये आगे सक्सेसफुल ही ना रहे। बहुत तरह के सवाल मन में आते हैं जब हम इस तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज हमने एक टॉपिक लिया है फ्रॉम विजन टू विक्ट्री। सो हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू अ ग्रैंड सक्सेस। So today we have with us Mr. Krishna Kumar. So he's co-owner of Million Cases and Peoplely India, a leading smartphone accessory brand. He is also a partner in three direct-to-consumer fashion and home brands. And Krishan's venture is self-funded. And so also he has been generating a staggering amount of, say, 1 million US dollars of monthly sales. So he has a passion to convert the struggling brands into a success and transforming partnerships and looking into the obstacles which are faced by an organization and converting them into successful ventures. He has been taking these initiatives based on certain data, a certain vision that he has in mind. So I welcome Mr. Krishna Kumar for this session, and I would request him to share his transformative journey. So how did he, first of all, come about with this idea कि उनको ये काम करना चाहिए, इस तरह का product में उनको venture करना चाहिए. So Krishna Kumar, I request you to just share how did you think in terms of coming about with this venture. So, first of all, thank you for having me here. It is a great honor for me. I cannot even believe that I am doing this. I have got the opportunity to talk in front of so many senior people and एक मैनेजमेंट स्कूल के सामने स्टूडेंट्स के सामने बात करना, बात रख पाना, ये अपॉर्चुनिटी मिलना, इट इज़ अ बिग ऑनर फॉर मी एंड आई रियली थैंक एवरीबडी, स्पेशली अशोक सर एंड मैम. तो जैसे मैम हमने सबसे पहले पूछा कि हाउ डिड वी गॉट एन आइडिया कि हमें ये चीज़ करना चाहिए. तो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, जो बिजनेस अभी हम कर रहे हैं, तो ये एक कह सकते हैं हम कि क्राइसिस से निकली हुई चीज है. वी वर डूइंग समथिंग एल्स बिफोर, बट देन ऑल ऑफ सडन वो चीज काम करना बंद हो गई. और उसकी वजह से फिर हम जो बिजनेस कर रहे थे वो बिल्कुल उसने एनी रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर दिया. प्रॉफिट इज फार थिंग, मतलब हम रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर पा रहे थे, हम ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे थे. तो फिर हमने जब सोचना स्टार्ट किया कि व्हाट टू डू, अब हम क्या कर सकते हैं. तो somehow we got to know about e-commerce. Then we started figuring out कि e-commerce क्या होता है, कैसे होता है. बिल्कुल from ground zero, we had no idea what is e-commerce and anything related to it.
but we had no any other option. So we started looking around about e-commerce, and then everything just got happened in the way. And हमने बहुत एक्चुअल में हार्ड वर्किंग किया, बहुत सारी चीजें की, सीखा, दिन रात काम किया, जो कि नॉर्मली एवरीबडी हु एवर इज सक्सेसफुल, या जिसने भी कुछ लाइफ में कुछ भी अचीव किया है नॉर्मल लोगों से कुछ आगे बढ़कर, तो ये चीज हर पर्सन करता है, हार्ड वर्क करना एंड एक ग्रिट के साथ में काम करना। तो वो सब हम वो सब चीजें हमने की, एंड दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट ई कॉमर्स, एंड करेंटली वी आर डूइंग अ गुड बिजनेस। आपने ये कैसे एक जहन में आइडिया लिया कि आपको स्मार्टफोन एक्सेसरीज ही सप्लाई करने, ये राइट। आपने कब सोचा? ये आपको एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा जब आपने सोचा होगा कि नहीं, मुझे यही काम करना है और मैं इसी में अपने सारे जो एनर्जीज हैं वो लगाऊंगा, तो ये कब आपके दिमाग में आया? बिल्कुल मैम। तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि हमें यही काम करना है और हमें इसी को परसू करना है। जब एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आपके पास जो भी पॉसिबल चीज आती है सामने, आप उसको ट्राई करने का कोशिश करते हो कि ओके लेट्स जस्ट ट्राई इट, कि ये हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हम्म। क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में थे कि हमें कुछ तो करना था, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो अब ये जो स्मार्टफोन केसेस वाली जो आपने बात पूछी, हमने ये कैसे स्टार्ट किया, हमें कैसे आइडिया आया। तो हम जो पहले काम करते थे वो काम बंद हो गया, और हम अब पूरे दिन ऑफिस में आके, मैं और मेरे पार्टनर थे रोहित, मतलब रोहित अभी भी मेरे पार्टनर है, तो हम लोग ऑफिस में आते थे पूरे दिन ये सोचते थे क्या करें क्या करें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि यार जो काम हमारा बंद हुआ, वो तो और भी बहुत सारे हमारे फेलो फ्रेंड्स थे जिनसे हम कनेक्टेड थे फेसबुक पे या अदर नेटवर्क्स पे, तो उनका भी काम बंद हुआ है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल चीज हुई थी। तो हम उनसे बात करते हैं कि यार वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो लेट में भी कुछ आइडिया मिले और कुछ एक है ना कोई रास्ता मिले कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक हम्म। फ्रेंड मिला, उसने बोला कि यार एक ना मेरा फ्रेंड है जो ईबे के ऊपर ना आईफोन के केसेस वगैरह सेल करता है, और वो ठीक ठाक कर रहा है, तो मे बी वी कैन आल्सो ट्राई दैट। तो ओके। अब यहाँ पर वो बात आती है कि जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, व्हेन यू हैव नथिंग, तो आप फिर कुछ भी जहाँ पे भी आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक आइडिया मिलता है, तो यू जस्ट गेट इनटू इट। तो इस तरीके से हमने स्मार्टफोन केसेस का हमें आइडिया मिला। उस टाइम पर आईफोन्स वर लिटरली वेरी हॉट। अभी आईफोन्स गॉट वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन आज के टाइम पे है, बट आज से हम्म। 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो इट वॉज वेरी न्यू थिंग। वो एक एस्पिरेशन की चीज होती थी लोगों के लिए, जैसे आज के टाइम पे एक लग्जरी गाड़ी होती है, उस हाँ। तरीके से दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ वेरी लग्जरी काइंड ऑफ थिंग। तो हम्म। हमने उसके साथ में ट्राई करने की कोशिश करी, एंड फिर हमें चैलेंजेस आए जो कि ऑब्वियसली हर काम में आते ही हैं, बट हमने उनको बहुत अच्छे कुछ से एक टैकल चैलेंजेस किया। आप जो शेयर करना चाहेंगे जो आपने फेस करे? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बिगेस्ट चैलेंज आता है, कोई भी पर्सन अगर ऑनलाइन सेल करने के लिए जाता है, तो अब आपने एक स्टोर बना लिया, आपके पास प्रोडक्ट्स भी है सेल करने के लिए, बट नोबडी नोज अबाउट योर ब्रांड। कैसे कोई जाने कि भाई मिलियन केसेस एक साइट है जिसके ऊपर ये चीजें सेल होती हैं, और किसी को नीड है तो उसको आपके बारे में पता नहीं है। तो उसके हम्म। लिए मार्केटिंग करी जाती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड ऑल दिस थिंग। तो हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वी हैड जीरो एक्सपीरियंस ऑफ एनी मार्केटिंग एड। तो हमने जब एड्स वगैरह रन करनी स्टार्ट की, तो हम, अब जब आपको कुछ पता नहीं होता, जैसे आप गाड़ी चलाने जा रहे हो एंड हम्म। आपको गाड़ी का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई कैसे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हिट गाड़ी को बार बार आप ठोकते हो, वो चीजें होती हैं। तो करेंगे, हमने हाँ। ऐसा, हाँ, हमने वो चीजें करनी स्टार्ट की, तो हमारे सिर्फ पैसे खर्च हो रहे थे एंड कोई भी ऑर्डर्स, कोई भी सेल नहीं आ रही थी। तो दिस हम्म। वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें ई कॉमर्स में आई। तो फिर ये चीजें हमारे साथ कुछ दिनों तक चलती रही, हमारे पास जो भी बजट था वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड हम्म। हम अब हमें ये सोच रहे थे कि यार ये जो हमने डिसीजन लिया, ये हमने सही भी लिया है, या जो हम कर रहे हो करना भी चाहिए नहीं चाहिए। बट क्योंकि अब कुछ और नहीं था, तो हम इसको जस्ट एनी हाउ कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। देन वी अगेन डिस्कस विद सम फ्रेंड्स, जिनको हमें पता था कि उनको पास्ट में कभी फेसबुक एड्स वगैरह का एक्सपीरियंस रहा है, गूगल एड्स वगैरह उन्होंने कभी तो चलाई हुई है पहले। तो हमने उनसे बात की कि भाई हम ये चीजें ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, बट हमें एड्स चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप थोड़ा हेल्प वगैरह कर सकते हो। तो एवरीबडी वाज इन दैट फेज कि हाँ कुछ तो नया करने का, सीखने का या एक्सपेरिमेंट करने का मोड में थे सब। तो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमने उनको एड्स की जिम्मेवारी दी,
एंड हमने बाकी चीजें इन्वेंट्री एंड पैकेजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स हमने संभाला। तो इस तरीके से जो पहला प्रॉब्लम आया था, मार्केटिंग नहीं जानना या एड्स के बारे में हमें नहीं पता, तो ये प्रॉब्लम आई हम्म थी, एंड दैट्स हाउ वी गॉट वी सॉल्व दैट थिंग। एक थोड़ा सा पर्सनल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जी, आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने ये वेंचर शुरू किया अपना? राइट। तो मैम अभी करंटली आई एम 31। हम्म 10th अक्टूबर को आई कंप्लीटेड 31। सो 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो आई वॉज 23-24। ओके। एंड बट उससे पहले, ई कॉमर्स से पहले, आई यूज टू डू समथिंग एल्स जिसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। मैनी अच्छा। पीपल मस्ट हैव एन आइडिया कि ब्लॉगिंग क्या होता है, एंड वी यूज टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। मतलब अच्छा। जब हम मैं कॉलेज में था, आई हम्म। यूज टू रन अ कंपनी। मैं फुल टाइम कॉलेज आता था एंड कंपनी बैकएंड में काम करती थी, एंड वी यूज टू मेक अ गुड अमाउंट, जैसा 1 लाख 2 लाख रुपए हम महीने का कमाते थे कॉलेज में रहते हुए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। ओके। तो वो वाला फेज था। और ऑल ऑफ सडन जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे काम में एक प्रॉब्लम हुआ था, वो हुआ ये था कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग में मेन जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है दैट इज गूगल एडसेंस। जब आप किसी साइट पर जाते हो तो आप देखते होंगे वहां पे कुछ एड्स लगी होती हैं कॉर्नर में या बीच में। तो जब कोई हम्म पर्सन उस पर क्लिक करता है तो देन यू गॉट पेड समथिंग। तो गूगल की कुछ पॉलिसी अपडेट हुई थी, और उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा मेन रेवेन्यू सोर्स था वो गूगल ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। तो उसकी ओके। वजह से जहां पे हम लाखों रुपए कमा रहे थे, वी गॉट टू अ पॉइंट जहां पर हमारे लिए ऑफिस का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया था। तो हम्म। दिस वाज द थिंग। तो आई रादर यूज अ वर्ड कि आपका एंटरप्राइजिंग माइंड शुरू से ही था। और यस, यू दूसरा कैन से। दूसरा चीज जो मैं बोलूंगी कि आप में परसिस्टेंस था। तो आप जबकि आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था, आप फिर भी इस प्रोजेक्ट में, अपने इस काम में लगे रहे कि कभी ना कभी तो सवेरा होगा। सो यस मैम, डोंट बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी डोंट पर्सन को अगर अपना काम करना है ना, तो हम्म ये एक दो गुण ऐसे हैं जो पर्सन हैज टू हैव इट, अदरवाइज दे कैन नॉट डू इट। सो वन इज टू बी एंटरप्राइजिंग इन नेचर। कुछ नया ट्राई करो, अच्छा ये नहीं चल रहा तो दूसरा चीज तो चलेगी, उसको ट्राई करो। बट उसको राइट, बीच में ऐसे मत छोड़ दो कि चलिए 5-6 महीने क्या और अब नहीं हो रहा तो अब छोड़ गए, अब कुछ और ट्राई करना चाहिए। सो फॉर बिल्कुल। हाउ लॉन्ग डिड यू थिंक कि अब कुछ नहीं हो रहा था और फिर भी आप इस जो एसेसरीज का बिजनेस है उसको करना चाह रहे थे? कितना समय लगा होगा? जब तक हमें कोई और ऑप्शन ना मिल जाए जो उससे भी बेटर हो, तब ओके। तक हम यही करने वाले थे। बिकॉज तब तक जिस टाइम पे ये चीज हुई थी, हमारे कॉलेजेस खत्म हो चुके थे। हम्म तो अब कॉलेज खत्म होने के बाद आपके पास में एक प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से, जो एवरीबडी इंडियन, क्योंकि हम लोग यूएस या कहीं बाहर नहीं है जहाँ पर फैमिली अलग रहती है, और जो नॉर्मली हम जैसे लोग यंग लोग रहते हैं वो अलग रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये फैमिली हम्म। का प्रेशर होता है, भाई तुम्हें बीटेक कराया है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है, तो ऑब्वियसली पैसा यू विल खर्च किया। हैव टू डू समथिंग। तो हाँ। हमारे ऊपर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा प्रेशर था कि एनीथिंग, ऐसा कुछ करना है जिससे हम कि रेगुलरली घर पे कुछ दे सकें, और घर वालों को ये डर ना हो कि, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का एक ना माइंडसेट रहता है कि उनके आसपास वाले उनको बहुत वो कहते हैं, भाई तुम अपने बेटे अपने बेटी को ना ये सब मत करने दो, बहुत लोग इसमें डूबे हैं, इनको हम्म देखो उनको देखो, देखो उन्होंने इतना कुछ था आज खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो ये ना हम्म डर बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे ही घर वालों को अगर ये बात पता चलती है कि आपका काम बहुत बुरे स्टेट में, आप पिछले कई महीनों से कुछ भी कमा नहीं रहे हो, बल्कि आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हो, तो वो ना एक हम्म वो प्रेशर बहुत ही ज्यादा इमेंस हो जाता है हमारे ऊपर। तो हमें ये हम्म था कि भाई हम उसके साथ में हम बहुत सारी और चीजें भी देख रहे थे, बट दिस वाज द थिंग जिसके सिग्नल्स बहुत अच्छे मिल रहे थे कि हाँ ये चीज काम कर सकती है। हम्म। तो ऐसे हमने इसको आगे बढ़ाया और इस चीज को किया। ओके। जी। और इसमें लॉजिस्टिक्स को आपने कैसे मैनेज किया अपने वेंचर में? जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट था, हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो इस बारे में मैं बोलूंगा कि आई वॉज काइंड ऑफ अ बिट शार्प काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे ना हम्म। मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम जीनियस काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ मेरे को मतलब नंबर्स अच्छे से समझ में आता है। हाँ। तो जब हमने ई कॉमर्स फिगर आउट किया कि ई कॉमर्स करना है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लॉजिस्टिक्स की नीड आती है कि अगर आप ई कॉमर्स करोगे तो आपके पास जो ऑर्डर आएंगे वो कैसे भेजोगे, क्या करोगे। तो हम्म फिर हमने मार्केट में जाके लोगों, जहाँ पे हमने कुरियर वाली दुकानें होती है जहाँ से कुरियर भेजते होते हैं, तो उनसे हम्म जाके हमने पूछा कि भैया यार हमने ई कॉमर्स करना है, तो हम्म अब ये कैसे होगा, हमने अगर इंडिया मतलब यहाँ से बैंगलोर भी भेजना है, मुंबई भेजना है, दिल्ली भेजना है हमारे सामान, तो कैसे होगा। तो कहते हैं हम्म। आप ना फिर ये कुरियर कंपनीज है जैसे ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, डीटीडीसी वगैरह, तो आप अच्छा। इनसे बात करो, ये आपको हेल्प करेंगे।
तो हमने बोला ठीक है, तो इनके नंबर वगैरह कुछ, तो किसी ने एक नंबर दे दिया, फिर किसी का एड्रेस मिल गया हमें गूगल से, हम उनके ऑफिस चले गए कि हाँ जी हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमें आपके साथ टाई अप करना है। तो दैट्स हाउ, क्योंकि जब आपके पास में कोई और रास्ता नहीं होता ना, तो फिर आप कुछ भी करते हो उसके लिए। तो हमारे पास हमारी सिचुएशन वो थी कि हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं कहीं पर भी जाने में, किसी हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, एनीथिंग एनीथिंग वाज एक्सेप्टेड। सो दैट मोड हमने लॉजिस्टिक्स को बहुत इजीली फिगर आउट कर लिया। एंड टुडे आई वुड प्राउडली से कि हम अभी चंडीगढ़ में बैठे हैं, एंड ट्राई सिटी हम्म बोलते हैं चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला को। हम्म अगर कोई भी पर्सन ब्लू डार्ट में या डीटीडीसी में या उन कंपनी से पूछे हु इज योर बिगेस्ट क्लाइंट इन ट्राई सिटी, सो वी कैन ओके प्राउडली से दैट वी आर देयर बिगेस्ट क्लाइंट। ओके whatever revenue they दैट्स are generating कमेंडेबल। from this region, हाँ बहुत अच्छा परसेंटेज वी कंट्रीब्यूट टू देयर रेवेन्यू। हाँ, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट है मिस्टर राकेश, वो यही पूछ रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज लॉजिस्टिक्स ऑफ डिमांड वर्सेस सप्लाई व्हेन देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन द मोबाइल एसेसरी बिजनेस। सो यस, आपका जो ब्रांड है, आप उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं और उसका सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते हैं? सो दैट इज व्हाट बिल्कुल। इज ट्राइंग टू आस्क। इनिशियली चीजें बहुत सारी मैच्ड अप हो गई थी जब हमने काम हम्म करना स्टार्ट किया। और जो सर का क्वेश्चन है बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि इस चीज में बहुत लोग फंसते हैं। हम कुछ टाइम तक कोशिश करते रहे अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, बट एट अ पॉइंट हमें ये समझ में आया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, या फिर हम एक लेवल तक ही मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। देन वी स्टार्टेड हम्म हायरिंग पीपल जो किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे सके, जो ओके। उसको तो मतलब चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, अगर किसी के पास एक आइडिया भी कुछ है जिसको हम हम्म ट्राई कर सकते हैं, तो हमें वो करना है। तो वहां से हमारी हायरिंग वाली गेम स्टार्ट हुई। दैट टाइम वी हैड नो एम्प्लॉयज, मतलब मैं एंड मेरे पार्टनर थे, और एक दो जैसे हमने अपनी घर से सिस्टर को बुला लिया, ब्रदर को बुला लिया, तो हम ऐसे काम कर रहे थे। फिर हम्म हमने जब फर्स्ट हायरिंग करी तो उनको हमने यही दिया कि यार हम ना इसको सेल कर रहे हैं, अब ये चीज सेल हो जाती है, हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाता है, या कोई चीज हम ले हम्म आते हैं और वो बिक ही नहीं रहा, तो इसमें हम हम्म कैसे इस पे करें। तो फिर हमने कुछ लोगों को हायर किया, उन्होंने सबने अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, और हम नई नई थ्योरी एवरी डे कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहते थे। अभी भी मैं ये बोलूंगा दिस इज नॉट 100% सॉर्टेड, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस, बट यस वी हैव सॉर्ट इट अप टू अ वेरी हाई लेवल। तो इसका आंसर अगर मैं आपको वन वर्ड में बोलूं तो टीम एंड द पीपल हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स नंबर्स, जिनको गणित समझ में आता है ना, दे कैन सॉल्व दिस थिंग और एटलीस्ट मिनिमाइज द डैमेज। तो हम्म। दैट्स हाउ वी डील विद दैट थिंग। तो ये तो आपका जो टीम में आपने इंक्लूजन किया है वो सेल्स के हिसाब से है। सो हाँ आपकी जी, टीम में ऐसे कौन और दूसरे शख्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस बिजनेस को बढ़ाने में, अपार्ट फ्रॉम द सेल्स पर्सन? हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पार्टनर थे। तो हमने हम्म पहले अपने कुछ टाइम तक तो हम कोई भी कुछ भी करता रहता था जैसा नॉर्मली होता ही है। हम्म उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं उनके मुकाबले, एंड मैं नेगोशिएशन में बहुत अच्छा हूँ। ओके मैं किसी भी पर्सन से किसी भी चीज के लिए नॉर्मली एक अच्छे नेगोशिएशन कर सकता हूँ। ओके। वो जो मेरे जो पार्टनर हैं, ही वॉज मोर इनटू मार्केटिंग, उनको प्रोडक्ट, उनमें बड़ी एक अच्छी सिक्स सेंस है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा सेल होगा, तो मैक्सिमम टाइम पर वो प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा सेल हो जाता था। तो हमने उनको दे दिया कि भाई तुम प्रोडक्ट का रिसर्च करना, मार्केटिंग करना, उसके लिए नए एड्स बनाना, क्रिएटिव करना, वो चीजें तुम संभाल लो। मैं आपको बीच में ना थोड़ा सा बोलूंगी। आपने कहा कि उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हाँ, है ना? ये बिल्कुल। सिक्स सेंस मेरे ख्याल से इतनी आसानी से नहीं आता। वो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते होंगे, वो मार्केट को हमेशा स्टडी करते रहते होंगे कि ये वाला प्रोडक्ट है शायद यही सक्सेसफुल रहेगा। तो ऐसा कोई उनके कुछ पास रिसर्च के है? एलिमेंट डेफिनेटली हाँ, होते या हैं, कुछ जैसे कि आप हाँ। कंपटीशन को एनालाइज करते हो कि और वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसा है। बट हम्म जब हम मार्केट में जाते थे, जैसे कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी सारी परचेजिंग जो हम करते थे वो दिल्ली से, करोल बाग से ही करते थे। तो हम वहां जाते थे तो कई प्रोडक्ट ऐसे तो बिल्कुल नए आते आए होते थे उनके पास, जो पहले किसी कभी देखा ही नहीं। तो ओके। हम लोग ना थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट हमारा था, हम हम्म ऐसे कहते हैं कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, चलेगा तो सही है, मजा आएगा। तो ये एक एटीट्यूड जो है ना, थोड़ा सा देखो, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में यू हैव टू हैव दिस have दिस फीलिंग। risk taking, या बिल्कुल, risk आपके taking, अंदर ना या एक अच्छा। अनबिलीवेबल सा वो रहता है कि दूसरे लोगों को जो डर जाए कि नहीं 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 नहीं, इससे तो नुकसान हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर तो यू हैव गेट अ फीलिंग कि आप
ये चल जाएगा। और जब आप ऐसा चीज करते हो ना, तो इवन दो आप फेल हो गए, दूसरा हम्म पर्सन जो जो एक्शन ही नहीं ले रहा, जो डिसीजन ही नहीं ले रहा, तो उससे हम्म आप बेटर करो। क्योंकि अगर हम 10 प्रोडक्ट ऐसे लेके आते थे तो 5 फेल भी हो जाए, तो 5 जो चलते थे ना, उनसे हम्म हमें इतना प्रॉफिट हो जाता था कि जो 5 नहीं चले उनका हमें नुकसान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब कोई ओके। पर्सन है जो ये चीज ना करके वो ये सोचे कि यार नहीं, ये तो अच्छा काम नहीं करेगा, तो मेरा तो इसमें 50,000 डूब जाएगा, तो फिर तो मेरे पास तो इतना ही है। तो अब अपने अपना तरीका होता है, बट हाँ इट वो वाज नहीं, अवर अवर वे। या हाँ। बट दैट वाज डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप खुद जाते थे वहां पे, देखते थे कौन सा प्रोडक्ट है, वो चलेगा नहीं चलेगा, सो दैट इज नॉट इजी। नो, दैट यस। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने, पहली चीज तो है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना कि आपको बेचना क्या है, वो बिल्कुल। सही है कि नहीं, वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं। राइट। बाकी जब ये डिसाइड होता है, फिर आता है आपका लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन और उसको सेल्स पुश करना, वो सारी चीजें। बिल्कुल। तो इसमें जब आपने बोला कि हम अगर यही सोचते रहे इतना पैसा लगेगा, डूब जाएगा, तो ये रन, ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट और उसका रिस्क जो है वो आप कैसे मैनेज करते हैं फिर? मैम, जब हमने काम स्टार्ट किया तो हमने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले, हम जो ब्लॉगिंग करते थे तो हम उसमें ठीक ठाक हमने पैसे कमाए हुए थे, जो हमारे पास हम्म कुछ सेविंग्स वगैरह थी। तो हम्म हमारे पास एक थोड़ा सा तो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट पहले से बना हुआ था, क्योंकि हम 4-5 साल ऑफिस चला चुके थे, चाहे वो दूसरे काम का था, लेकिन हम चला चुके थे, तो हमारे पास एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था लोगों से हम्म डील करने का। और हम्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी नेगोशिएशन स्किल्स, या हम लोगों के साथ में बात अच्छे से करके ना, कॉन्फिडेंस में लेके हमने ये चीजें फिगर आउट कर ली कि क्रेडिट से भी काम हो सकता है। फिर कुछ चीजें अगर मुझे एक्सटर्नल फंड की जरूरत पड़ी, तो मैंने देयर वाज अ टाइम, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि एट अ हम्म पॉइंट वी वर एट अ स्टेज की जब हमारे पास, हम विनर प्रोडक्ट, हमें पता था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं ना इंडियन ई कॉमर्स में, तो होता यह है कि आज हमारा सामान गया, वो कुरियर कंपनी से लेके गई, वो डिलीवर होगा, 4-5 दिन बाद डिलीवर होता है नॉर्मली। उसके बाद जो हम्म फंड्स कलेक्ट हुए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में मैक्सिमम ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में जाते हैं, हम्म तो जो फंड्स कलेक्ट हुए वो आपके पास आने में 15-20 दिन का एक सर्कल लग जाता है। हम्म तो अब हमारे पास एक चीज है जो बहुत अच्छी बिक रही है, वो सारा बिक चुका है। अब वो जो हम्म पैसे हैं वो हमारे पास 20 दिन बाद आने हैं, और मुझे हाँ पता है कि इसको मैं बेच के और बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। तो हम्म एक एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे पास में बिल्कुल पैसे खत्म हो गए। तो फिर हम्म मैंने अपने पापा को बोला कि एक हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं, जो हम्म कुछ ऐसे ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं, जो नॉर्मली अपने यहाँ पे चलता है इंडिया में काफी अच्छे लेवल पे। तो उनको मैंने बोला पापा को कि कुछ पैसे वगैरह हो सकते हैं तो उनसे दिलवा दो। तो हम्म उस टाइम पर हमने 1 लाख रुपए 5% मंथली ब्याज पे हमने ऐसे उनसे लिया। फिर हम दिल्ली गए बस में, जाके फिर हम सामान लेके आए, फिर हमने उसको बेचा। फिर अगेन वो खत्म हो गया तीसरे दिन ही, क्योंकि वो चीज ओके बहुत अच्छी सेल हो रही थी, और ओके, पैसा हम उससे कमा रहे थे, बट पैसा आना था 1 मंथ बाद। बाद तो में। फिर अगेन हम अपने अंकल के पास दोबारा गए, कुछ पैसे चाहिए। आप कहते तुम कर क्या रहे हो भाई, तुमने 1 लाख रुपए 3 दिन में खत्म कर दिए, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि नॉर्मली 1 लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट फॉर एनीबडी। या वो कहते कि, और तुम उस टाइम पे हम थे भी 22-23 साल के, तो वो बहुत सस्पिशियस थे कि तुम कुछ सट्टेबाजी तो नहीं कर रहे, तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। और ओके, ऑनलाइन सुन के ही बहुत लोगों के मन में सीधा वो चीज आती है कि भाई होती है ये ना कि गलत चीज में पड़े हुए गलत हैं। है। हाँ। तो फिर भी एनी हाउ वी कन्विंस्ड हिम कि नहीं नहीं, हम्म ये देखो, हमने उनको अपना स्टोर खोल के दिखाया, देखो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये है वो है। तो कहते हैं ये इतने का ऑर्डर आ रहा है, तुम्हारे पैसे क्यों नहीं है? फिर हमने वही हम्म उनको सेम बात एक्सप्लेन करी कि ये ऑर्डर गए हैं, अभी कलेक्ट होके आएगा, ऐसा वैसा। तो हम्म 1 लाख रुपए हमने एक टाइम पर ब्याज पे लिया, 5% पे। एंड नाउ हम्म टुडे वी आर डूइंग मोर देन 10 करोड़ रेवेन्यू पर मंथ। सो ओके। दिस इज अ एक बेंचमार्क हम कह सकते हैं कि कहाँ से आप कहाँ तक आ सकते हो। हम्म रियल एग्जाम्पल, मेन हाँ चीज हाँ मैं इस वजह से ये करना चाहता था, अभी हम जो टॉक कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों के अंदर ना कैपेबिलिटी बहुत होती है, बट जस्ट बिकॉज अब छोटे छोटे कंसर्न्स की वजह से कि यार पापा नहीं मानेंगे, या फिर अगर ये 1 लाख रुपया मैंने ले लिया और डूब गया तो क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब हम सब लोगों के कंसर्न्स बहुत छोटे होते हैं, अगर हम देखेंगे ना तो बहुत हम्म छोटे होते हैं। तो और लिटरली आई एम कमिंग फ्रॉम अ सो हम्बल बिगनिंग, मतलब आई कैन नॉट टेल कि यहाँ पे अगर हम 50 लोग होंगे तो मैं लिटरली कह सकता हूँ कि आई वॉज एट द 50th प्लेस।
बहुत ज्यादा। मैं अपने घर में टीवी खरीद के लाने वाला पर्सन मैं था, फ्रिज खरीद के लाने वाला पर्सन मैं था, इन्वर्टर खरीद के लाने वाला पर्सन मैं था। अब ऐसा नहीं था कि पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, बट पापा का कहना था कि पढ़ने वाले बच्चों के घर में टीवी की जरूरत नहीं। तो दिस दिस वाज द थिंकिंग काइंड ऑफ थिंग। और हम्म हमारे पास उस टाइम पे घर पे हर पर्सन के पास 2 या 3 कपड़े होते थे, जो हम्म सिंपल था कि एक स्कूल के लिए है, एक घर के लिए है, एक कहीं तुम्हें जाना है तो उसके लिए। हम्म। दैट्स इट। तो अभी कोई भी पर्सन अगर मेरी बात सुन रहा है तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन से आगे ही हर पर्सन होगा। तो दिस इज जस्ट टू मेक एवरीबडी बिलीव हाँ, दिस इज तो डूएबल। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का जो वैल्यूज ऐसे थे कि ठीक है, आप जो अपने बच्चे हैं उनको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको ग्रो करें, rather than just giving all kind of facility to the चिल्ड्रन। और वो है ना कि फिशिंग करना सिखाओ, और बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको फिश ला के दे दी तो आज तो वो खा लेगा, पर कल शायद वो ना अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। वेरी बिग तो पॉइंट मैडम, या लिटरली दिस इज द समथिंग जो एवरी इंडियन पेरेंट्स को समझना होगा, खास करके जो हमारी यंग जनरेशन की पेरेंट्स है ना। जैसे आई एम हम्म आल्सो अ फादर नाउ, आई हैव अ डॉटर 2.5 इयर्स की, मेरी बेटी है। तो हम्म हम इवन आई कैन अफोर्ड एनीथिंग फॉर हर, बट स्टिल हम जो है ना थोड़ी सी जो लिमिटेशन और वो चीजें रखनी चाहिए आई थिंक, हाँ, वो क्योंकि मनी की दिस इज वैल्यू सुपर इम्पोर्टेंट। सिखाना, और उसको ये समझाना बच्चे को कि आगे चल के हार्डवर्क और डेडिकेशन ही काम आता है। एंड देयर इज नो क्विक मनी दैट कैन बी मेड, देयर आर नो शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट्स, लिटरली देयर सो इज नो शॉर्टकट। एक्चुअली जो आपकी जर्नी है उससे यही समझ में आ रहा है कि पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ मेकिंग क्विक मनी। उनको लगता है कि बस कुछ थोड़ा सा करके मुझे काफी अच्छा पैसा मिल जाए, और वो बिल्कुल। जितना इनपुट होना चाहिए तो उतना वो इनपुट नहीं लगाते। राइट। सो 100%। सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% हार्ड वर्क और राइट। पर्सपिरेशन। कहते हैं कि 1% तो आपका इंस्पिरेशन होना चाहिए। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन या इंडिया का कोई कॉर्पोरेट जिसका आप कहेंगे कि आइडल था आपका, आपने उसके जो जर्नी है उसको दिमाग में रखते हुए कुछ ऐसा सोचा कभी? हाँ जी मैम, मैं कुछ लोगों को बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूँ। हम्म और फॉलो करने का ऐसा रीजन है कि दे आर वेरी सक्सेसफुल, इस वजह से फॉलो करता हूँ। मुझे ना उनकी थिंकिंग और उनका जो एक पैटर्न ऑफ वे होता है ना जो डूइंग का, वो मुझे बहुत पसंद आता था। तो फर्स्ट हम्म ऑफ ऑल आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई टेक हिम एज अ गुरु फॉर माई सेल्फ इज MS धोनी। ओके। MS धोनी, आई डोंट टेक हिम एज अ क्रिकेटर और एनीथिंग। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि जो उस पर्सन में एक रिस्क लेने की जो क्षमता है, या जो सोचने की कला जो है ना, कि आप हम्म बैठे बैठे आप विकेट के पीछे खड़े हो और आप पूरे गेम के बारे में यू आर विजुअलाइजिंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट या नेक्स्ट ओवर में क्या होने वाला है, अगली बॉल पे अगर ये हो गया तो क्या होने वाला है। तो हम्म वो मुझे ना सेंस ऑफ जो एक थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, मुझे बहुत पसंद आती थी। एंड एक बिजनेसमैन जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ इंडिया इज Radhakrishna Damani, who is the owner of DMart. हम्म That man is literally someone जिसको हर पर्सन को एक बार उनके बारे में जानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो हम्म सिंपल, हम्बलनेस की मतलब क्या लोग की जो एक सीमा हो सकती है, दैट इज दैट पर्सन। एंड ही हैव बिल्ड सो बिग बिजनेस, जो प्रमाण करता है कि यू डोंट हैव टू बी फैंसी। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर आप बड़े लेवल के सक्सेसफुल बिजनेस हो तो आप फैंसी होते हो, मतलब आपको हाँ, ये गाड़ी चलानी है, ये करना है, वो ना कुछ नहीं। हम्म मतलब वो इस लेवल को दिखाते हैं कि भैया आप बिल्कुल एक छोटे से कैबिन में बैठ के आप एक ऐसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जिसकी केस स्टडीज हार्वर्ड में या IMT जैसे कॉलेज में भी पढ़ाया जा सकता है। उठाए जा सकते हैं। जी। ओके, श्योर श्योर। तो आपकी टीम में आप हैं, आपके पार्टनर हैं। सो अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, देयर आर एज ऑफ नाउ हाउ मेनी पीपल इन योर टीम? सो करेंटली जो मेरी मेन कंपनी है दैट इज मिलियंस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो हम्म मिलियंस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड में वी हैव 105 एम्प्लॉयज एज ऑफ ओके। टुडे। हम्म एंड वी आर पार्टनर इन अदर फ्यू अदर कंपनीज एज वेल। तो अगर हम टोटल कंपनीज की ऑक्यूपेंसी ले तो वी हैव आई थिंक 250 प्लस पीपल वर्किंग फॉर आवर कंपनीज। तो हाउ डू यू कीप योर पीपल मोटिवेटेड एंड giving them a streak of winning all the time and having a congenial, conducive environment?
so that your company grows in future as well. तो आपने कैसे अपनी टीम को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं? मैम इसमें एक मैं चीज बताना चाहता हूँ कि हमारी एक नेगेटिव चीज ये रह गई कि हमने कभी भी जॉब नहीं किया, मैंने और मेरे पार्टनर ने, क्योंकि हमें जॉब का हम्म। मौका ही नहीं मिला। कॉलेज के दौरान में ही हमारी कंपनी चल पड़ी थी। फिर उसके हम्म। बाद में जब कॉलेज खत्म हुआ तो वी हैड ऑलरेडी ए कंपनी रनिंग और वी वर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो हमने कभी जॉब नहीं किया। तो हमने हर चीज ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो हमने उसके बारे में रिसर्च किया। जब भी कोई, जैसे कोई दो दो एम्प्लॉयज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैंने हम्म। उसके बारे में देखा कि कौन सी बुक्स है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छी है, या कोई ओके। वीडियोस यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कई बार स्टैनफोर्ड की वीडियोस देख ली, कुछ ऐसा कर लिया। तो हमने ये हम्म। देखते रहे कि अगर एक एम्प्लॉय जाता है जैसे, तो उसके जाने क्या क्या कारण होते हैं। तो जो कारण होते हैं, क्या उनमें से हम किन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर किन सकते चीजों हैं। को हम एक्चुअली मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम ना हम्म। रेगुलर वॉच रखते थे कि जैसे हमें, अब हम अगर अपने ऑफिस में जाते हैं तो दिख जाता है कि यार समवन इज, वो रोजाना दिखते हैं वो बहुत ही ढीला सा बैठा होता है, बोरिंग से पोस्चर में है। तो उससे एक बार हम अपने टीम मैनेजर को, एचआर को बोलते हैं कि उनसे बात करो क्या प्रॉब्लम है उससे। तो हम्म। कई बार मे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बंदे को मूड ठीक नहीं है, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, तो हम उनको छुट्टी देते हैं कि तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारा ऑनलाइन काम की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव टू सिट एट वन प्लेस। ओके। तो हम बोलते हैं लैपटॉप लेके जाओ, हम्म। अब तुम घर से काम कर लो, या अगर छुट्टी चाहिए तो 5 दिन के लिए छुट्टी ले लो, एंड वी डू नॉट कट एनी सैलरीज फॉर दैट थिंग। तो उन लोगों को थोड़ा ये रहता है कि अगर मुझे कोई बर्नआउट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, बिकॉज वी नो कि इस चीज में प्रेशर, माइंड पे प्रेशर बहुत होता है, तो ये चीज हो सकती है। सेकंड, हमने इंसेंटिव प्लान्स बहुत अच्छे बिल्ड किए कि इफ समवन हम्म। इज डूइंग मोर देन ही हम्म। और शी गेट मोर। नहीं तो नॉर्मली लोगों को ना अदर कंपनीज में ये फीलिंग रहती है कि आप ज्यादा करके भी क्या होगा, क्या कंपनी ने तो फायदा अपने है, को हाँ। इतना ही देना है। सबको उतना ही मिल रहा है तो फिर मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं? हाँ, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है जो ज्यादा काम कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं, हम्म। तो दे गेट पेड मोर। तो इस तरीके से हमने लोगों को एक मोटिवेटेड इंसेंटिव करके, प्लान है। हाँ। हाँ, इंसेंटिव प्लान इज अ मस्ट थिंग। जहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है हमें सोचना चाहिए करना और करना चाहिए। चाहिए। एनी काइंड ऑफ बिजनेस, चाहे वो करियाने की दुकान से लेकर बड़े लेवल तक में भी, हर जगह हम्म। पर अगर बंदा सोचे तो कुछ ना कुछ तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये जो चीज लोगों को मोटिवेट करती है ना, उससे ज्यादा मोटिवेशन फैक्टर कोई और नहीं हो कुछ सकता। कुछ भी नहीं है, सैलरी हाँ। आप किसी को कुछ भी दे दो, सैलरी ऐसा होता है उसको लगता है कि ये तो हाई है। हम्म। बट जब कुछ और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा, तो उस टाइम पे उसको वो चीज अर्नड लगती है कि जो उसने कमाई है। बाकी तो फिक्स ही है, उसमें उसकी कोई कीमत नहीं मानते लोग, जो हमने देखा है मैक्सिमम चीजों में। सही बात है। अच्छा, एक चीज और, जब आप हायरिंग करते हैं तो हाँ जी, हाँ हायरिंग जी। करते समय आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शख्स आपकी कंपनी के लिए फिट है? पहले तो हम कुछ प्रोफाइल्स, जो एक्सपीरियंस लोग अगर हम हायर करते हैं, तो उनका हम हम्म। बैकग्राउंड चेक अब हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि हम उनका पुरानी कंपनी से, या जो लास्ट सेकंड लास्ट कंपनी थी उनसे फीडबैक लेते हैं कि भाई ये राकेश जी आपके पास काम करते थे, तो क्या इनका फीडबैक क्या है। तो एचआर जो नॉर्मली होती हैं, दे आर वेरी गुड एट शेयरिंग नेगेटिव पॉइंट ऑफ द पर्सन। तो वो नेगेटिव पॉइंट जरूर बताते हैं, पॉजिटिव चाहे बताएं या ना बताएं। तो पॉजिटिव वाली जो चीज है वो हम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जैसे हम कुछ लेते निकलवा हैं। लेते हैं। हाँ, हमें मतलब इतना सेंस हो गया है, अभी तक हमने 500 प्लस लोगों को हायर किया होगा। तो नाउ हम्म। वी अंडरस्टैंड कि किससे क्या पूछना चाहिए, किससे क्या नहीं पूछना चाहिए। तो जो हम्म। पॉजिटिव चीज, मुझे अब कोई बंदा पसंद आ गया कि यार ये बंदा काम का है, बट नेगेटिव चीजें देख लो कि क्या है। तो वो अगर कोई प्रीवियस एचआर कुछ बताती है तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हमने आपका बैकग्राउंड चेक किया था, उसमें ये चीज निकल के आई थी। देन हम्म। दैट पर्सन आल्सो क्लेरिफाइज, अपना रोल बताते हैं कि नहीं जी ये ऐसा था वैसा था। फिर हम अब कोई भी हायरिंग करते हैं तो हमेशा प्रोविजन पीरियड के साथ हायर करते हैं कि ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, वो सब ठीक ठीक है, बट आप हमारे कल्चर में फिट होंगे, या फिर अगर जैसा हमें आपसे एक्सपेक्टेशन अगर वो नहीं हो पाया, तो हम्म। विद इन प्रोविजन पीरियड वी कैन, मतलब हम आपको मना कर सकते हैं एनी ना, टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम किया। तो हम कई बार गलत हायरिंग हो जाती है, बट हम्म। प्रोविजन पीरियड वाला जो ये एक हमारे पास शील्ड है, ये बहुत अच्छा काम करता है। वी जस्ट हैव टू बी प्रोएक्टिव कि बंदे के ऊपर नजर रखें, या उनके काम के ऊपर केपीआईज डिफाइंड होते हैं कि आपसे हमें क्या काम चाहिए। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा है, हम उनसे बात करते हैं। तो पर्सन के पास रीजंस होते हैं कि जी ये नहीं था इस वजह से। तो फिर हम देखते हैं कि वो रीजन जो है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड रीजन है तो अगेन ओके, हम सॉल्व करते हैं, उसको दोबारा मौका देते हैं, नहीं तो हम मना कर देते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ समय से कोई है, काम कर रहा है एम्प्लॉय आपका, हाँ और जी, अब आपको लगता है कि उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो आपकी कंपनी के लिए होने चाहिए। राइट, उस ऐसा केस होता में है। क्या? हाँ। ऐसे में मैम हम उनसे बात करते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पर्सन है, उनको हमारी कंपनी में 5 साल प्लस हो गया। तो जब वो आई थी तो शी वॉज फिनोमिनल, मतलब कि उनसे बढ़िया काम करने वाला कोई था नहीं। बट ओवर द कोर्स ऑफ ईयर बाकी सब लोगों ने भी इम्प्रूवमेंट किया, बाकी सब लोग भी काफी आगे आए। तो अब हमें उनका ये लग रहा था पिछले 1 डेढ़ साल से कि यू आर नॉट एडिंग एनी एक्स्ट्रा वैल्यू टू द कंपनी। तो हमने उनको कुछ नए टास्क दे दिए जो उनके करंट काम से बिल्कुल अलग थे। तो हमने उनको बोल दिया कि ठीक है, आप जो आप काम अभी तक कर रहे थे वो नहीं करना है, आपने ये काम करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट प्रमोशन, वो सब चीजें मिल पाएगी। अदरवाइज, क्योंकि हम लोग ईयरली इंक्रीमेंट करते हैं, तो अदरवाइज अगर ये नहीं हो पाता है तो मे बी इंक्रीमेंट के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा। एंड हो हम्म। सकता है, देखो, अगर हम वैसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हैव गिवन देयर टाइम टू द कंपनी, बट इफ एट सम पॉइंट ये चीज हमें नेगेटिव हो जाती है तो हम कई लोगों को हमें फिर मना भी करना पड़ता है कि भाई वी कैन नॉट कंटिन्यू। कंटिन्यू विद यू। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा ही टफ डिसीजन होता है, बट वी हैव टू टेक इट, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर यू कैन नॉट बी सो इमोशनल। So yeah, दिस इज definitely. So you have a team of people who you know would be contributing to your organization. सबके roles एब्सोल्युटली, defined है, बिल्कुल and definitely अगर किसी के skills improve करने हैं, so you give them ample of opportunities to improve their skills as well. बिल्कुल आजकल बहुत बात करी जाती है हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, बिल्कुल। और आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे एक आपका एम्प्लॉय था, वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड सा था, थोड़ा सा लिथार्जिक था, सो यू गिव हिम दिस अपॉर्चुनिटी कि आप 5 दिन घर रह के काम करो और ये सब। और बिल्कुल क्या इस तरह के आप अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिसेस जिससे कि आपकी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से एम्प्लॉयज मेंटेन कर सकें? हम मैम मौके ढूंढते हैं चीजों को सेलिब्रेट करने का। ओके। बिकॉज जैसे मैंने आपको एम एस धोनी वाला एग्जांपल दिया है, इस काइंड ऑफ आइडल फॉर मी। तो हम्म। मैंने ये देखा कि धोनी जो है ना, वो मैच विन को जितना सेलिब्रेट करते हैं ना, उससे ज्यादा वो एवरी टास्क को, जैसे हमने कोई विकेट लिया तो हमने हम्म। उसको सेलिब्रेट किया, अगर किसी ने छक्का मारा तो हमने उसको सेलिब्रेट किया। हालांकि हम्म। अल्टीमेटली गोल इज टू विन द मैच, हम्म। बट अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो यू विल मिस द होल जर्नी। एंड मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज द जर्नी। जर्नी। कहीं पर भी किसी को भी कहीं पहुंचना होना, और अगर ये वो सोचता हो कि भाई जब तक वहां नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं सांस नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो वो अपने आप के साथ में बहुत बड़ा धोखा करते हैं। लिटरली आई कैन टेल यू, बिकॉज ये मैं खुद ये इस चीज से गुजरे हुए हैं। हम इनसे जब पास थ्रू हुए तो हमें पता चला कि यार एनीथिंग जिसके लिए हम्म। आप बहुत क्रेव करते हो, बहुत परेशान रहते हो, व्हेन यू गेट दैट थिंग ना, इट डोंट मेक यू हैप्पी। वो आपको बस कुछ पल के लिए ही आपको बस काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी, ठीक है मेरे पास अब ये हो गया या मैंने इसको पा लिया, बट हम्म। आफ्टर दैट फिर इट कैन नॉट मेक यू हैप्पियर। या यू आर एक दो दिन एक रेजोनेटिंग द जनरल जी की जो होती है ना थिंकिंग पैटर्न, बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं कि कोई भी खुशी का मौका है उसको मिस नहीं करना चाहिए, उसको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आगे की सोचते हुए आज का हम जो भी खुशी है उसको सेक्रीफाइस कर दें, ये भी सही नहीं है। सो दैट्स अ हाँ गुड वे टू कीप दिस वर्क लाइफ बैलेंस। और अ, आपके एम्प्लॉयज का आई एम श्योर कि इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि घर की प्रॉब्लम हो सकती है या ऑफिस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है ऑफिस में, तो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस जो आप करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को स्ट्रेस रिलीफ देने के लिए? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हम जैसे आज सैटरडे था तो सैटरडे को हमारा लगभग लगभग समझ लो मस्ती काइंड ऑफ डे ही होता है। इस दिन अच्छा। लोग काम कम करते हैं तो सबको हम ना अलग अलग छोटी छोटी टीम बना देते हैं। तो हम्म। उनको कुछ एक्टिविटी दे दी, जैसे आप वो चेयर वाला जो सॉन्ग चलता है, गाने रुकते हैं तो चेयर पे वो करना, वैसा म्यूजिकल कुछ, या फिर हम चेयर्स, हाँ। भांगड़ा कंपटीशन करा दिया, कुछ अच्छा। भी ऐसा क्विज कंपटीशन जिसमें लोगों को ना काम से हटकर कुछ चीजें करने की, एक्टिविटी करने का मौका मिले। जैसे हम्म। 14 अक्टूबर को लास्ट मंथ हमारी कंपनी की एनिवर्सरी थी, तो वी टूक अच्छा। अवर होल कंपनी टू अ रिजॉर्ट। हम वहां पे लेके गए, वहां पर पूरा एकदम अलग अलग गेम्स, स्विमिंग पूल और वो सब एक्टिविटीज हमने किया। फिर नाइट में हमने अवार्ड सेरेमनी की प्रॉपर, फिर हमने बोन फायरिंग करके वहाँ डांस वगैरह वो सब चीजें किया।
तो हम्म, वी डू ऑल द थिंग्स जो पॉसिबल है कंपनी के लिए कर पाना फॉर द वेल-बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज वी आर द पीपल हु ऑब्वियसली वांट टू सक्सेसफुल, इवन मोर सक्सेसफुल, वी वांट टू मेक मोर मनी एंड ऑल। बट द थिंग इज कि हम वो पर्सन है कि जो हम ना, हमें ये लगता है कि सक्सेस को बांट के शेयर करके चलने शेयर में करके। इज मोर बेनिफिशियल। क्योंकि हम्म, आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन जिसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हों और वो घर में अकेला हो। आई वांट टू बी पर्सन जिसके अकाउंट में चाहे 5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए पड़ा हो, बट वो दोस्तों के बीच में हो, वो बीच खुशी में हो, मना रहा हो, खुशी डांस में। मतलब कुछ एक्टिविटी होती हो। हाँ, हाँ। जब बहुत बार जब भी हम किसी चीज का प्लान करते हैं तो ये कहा जाता है शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। तो क्या आपने भी कभी ऐसे अपने जब वेंचर को शुरू किया तो इस तरह से सोचा कि ये शॉर्ट टर्म है और आगे चल के मुझे ये करना है, या सिंपली मैं आपसे पूछूं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो दोनों चीज, एक है कि आपने जब ये स्टार्टअप अपना उठाया, शुरू किया, तो आपने क्या कुछ ऐसा दिमाग में प्लान किया कि ये करंट टाइम पीरियड में या शॉर्ट रन में मुझे ये अचीव करना है और लॉन्ग रन में ये अचीव करना है? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या मैम, जब कोई भी पर्सन काम स्टार्ट करता है ना, तो उस टाइम हैं? पे तो सबसे पहले समझ लो कि वो ऐसी नीड है कि आपको बहुत भूख लगी है। तब आप ना चूज ही नहीं हो सकते बहुत ज्यादा कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मुझे ये अच्छी नहीं लगती सब्जी, ऐसा। उस टाइम पे तो जो मिल जाए उसको वही आप बढ़िया। ग्रैंड करते हैं। एक एक लेवल के बाद में व्हेन यू गेट द फूड, व्हेन यू गेट द सेटिस्फेक्शन कि हाँ आपकी भूख खत्म हो गई है, एवरीथिंग इज हम्म, सेटल डाउन, तब आप चूज करते हो कि ओके आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज ओनली, आई विल नॉट हैव अ पिज्जा फ्रॉम पिज्जा हट, ऐसा। तो हम्म, अगर मैं इसको बिजनेस में बात करूं तो पहली नीड तो ये थी कि भाई एनी हाउ वी हैव टू सर्वाइव। स्टार्ट समथिंग, या ठीक है, तो हमने वो उसमें 1-1.5 साल का टाइम सर्वाइवल वाले मोड में इनिशियल हायरिंग में लग गया। देन हम्म, ऑब्वियसली वी गॉट स्टार्टेड। एक हमने गोल रखा कि यार हमें ना प्रीमियम, पहले हम लोग हर मॉडल को, हर ब्रांड को सेल करते थे, लाइक एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, एवरीथिंग। देन वी हम्म, व्हेन वी लुक आउट द नंबर, तो हमें ये समझ में आया कि हर पर्सन को सर्व करना इज अ फुलिशनेस, बिकॉज हम्म, सम पीपल जस्ट कैन नॉट, यू कैन अफोर्ड दैट थिंग। ठीक है, हम्म, तो हमने फिर उसके बाद चीजें करी कि हमने पहला गोल रखा कि वी वांट टू बी द नंबर वन प्रीमियम स्मार्टफोन एक्सेसरीज, जो सिर्फ प्रीमियम फोन्स के लिए ही डील करते हैं। तो नाउ इफ यू लुक एट अवर वेबसाइट एंड अवर या, बिजनेस, तो वी आर ओनली डीलिंग इन मेन फ्लैगशिप डिवाइसेस, जो अपर एंड वाले होते हैं, प्रीमियम सेगमेंट वाले होते हैं। नाउ अवर गोल इज टू, जैसे कि अभी हमने हमने ई कॉमर्स में काफी चीजें फिगर आउट कर ली है, तो अवर गोल इज टू मेक मोर ब्रांड्स एंड कोलैबोरेट विद मोर ई कॉमर्स बिजनेस फाउंडर्स, जो किसी भी जगह पे फंसे हुए हैं, जिनको मे बी फंडिंग का प्रॉब्लम हो, या उनके पास टेक नहीं हो, टीम ना हो। तो इस तरीके से हम उनके साथ में कोलैब करें, उनके साथ उनको जो चीज की कमी है वो हम उनको प्रोवाइड करें, एंड देन हम दोनों उससे एक विन विन सिचुएशन पे जाएं। अल्टीमेट गोल, अगर मैं लॉन्ग टर्म की गोल की बात करूं, तो आई वांट टू बिल्ड एंड कह लो कि मैं आई वांट टू हेल्प पीपल बिल्ड ई कॉमर्स बिजनेसेस एंड प्रोवाइड एनीथिंग वट एवर दे नीड, चाहे वो कोई सिस्टम हो, टेक हो, टूल हो, फंडिंग हो, मेंटोरशिप हो, गाइडेंस हो, एनीथिंग। तो दिस इज okay. द थिंग। So यस, if there are persons who are interested in uh, implementing their ideas, so you would be ready to help them out in any way that you can. डेफिनेटली डेफिनेटली, बट द थिंग इज द पर्सन हैज टू द डिजर्व द हेल्प, बिकॉज एक 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 ऐसा होता है कि इफ समवन इज नॉट विलिंग टू ग्रो ना, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। वो आप किसी के लिए धक्का मारते रहो और वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम एंड योर एफर्ट्स एंड मनी। तो जैसा अभी एक बेस्ट एग्जांपल मुझे याद आता है कि अगर हम आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में अच्छी पढ़ाई होती है, दैट इज द सेकंड थिंग, बट Hmm. फर्स्ट थिंग इज कि हर किसी को आईआईटी में नहीं जाने देते। पर्सन हैज टू प्रूव दैट आई एम कैपेबल इनफ कि भाई मैं वहां पे To, जा सकता हूँ। तो दैट इज समथिंग जो पर्सन को शो करना होगा hmm. टू एनीथिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ बिल्ड करे, वो पर्सन की बात से आपको दिखना चाहिए यार इस बंदे में ना ग्रिट है, इस बंदे में ना जिद है, ये करेगा, इसको जो भी बोला जाए वो चीज ये फॉलो करेगा, जो समझाया जाए वो करेगा। समटाइम्स ना लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा आपसे सलाह लेते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलाते हैं, एंड इसकी वजह से मैसअप हो जाता है। अनटिल और अनलेस यू डोंट नो मोर अबाउट द थिंग, तो फॉलो करना चाहिए जिस पर्सन को वो चीजें पता है। और एक लेवल पे जाने के बाद में, व्हेन यू हैव एटलीस्ट सेटल द ग्राउंड, उसके बाद में डेफिनेटली एवरीबॉडी हैज टू थिंक एंड ब्रेनस्टॉर्म कि अब हम क्या कर सकते हैं। बट Hmm.
इनिशियल चीज जो मैं जो है पॉइंट की पर्सन हैज टू हैव द थिंग, उसके अंदर एक वो बात होनी भी चाहिए। बात होनी चाहिए कि वो कर पाएगा, उसके उसमें इतना ज्यादा जहन में उसके जील होना चाहिए, राइट, राइट, कमिटमेंट होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा। बिल्कुल मैम। So that was very beautifully explained by you, Mr. Krishnan. Now I'll open this discussion to the participants. So if anyone has any questions regarding the journey of Mr. Krishnan Kumar, you are welcome to ask questions. अगर किसी को कुछ भी पूछना है कृष्ण कुमार जी से उनकी जर्नी के बारे में, या आपका कोई आइडिया है, तो आप अगर थोड़ा सा उसका कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कृष्ण कुमार जी से कि मैं कैसे उसको बिगिन करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो you are बिल्कुल। all welcome. In the meantime, I would just request Mr. Krishna Kumar to point out 2 or 3 failures in his life in this journey. फेलियर्स। Yeah. मैम फेलियर्स ऐसे मुझे कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है जो हम सब आज के टाइम पे सुनते भी हैं कि आइदर यू विन और आइदर यू लर्न। तो Hmm. ऐसे फेलियर हम देखेंगे तो हमने कुछ हायरिंग की जो जिन लोगों ने गलत एक्टिविटीज करी, बट देन Okay. अगेन हमने उससे चीज सीख ली कि अब हमने कुछ क्राइटेरियाज बना दिए कि जब तक वो पर्सन क्राइटेरिया को पार नहीं करता पास वी वॉन्ट फिट हायर नहीं करेगा, हाँ. एनीबडी। तो अब Okay. वो देखा जाए तो दैट वाज अ फेलियर आल्सो, बट दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ Learning as लर्निंग फॉर well. अस। हाँ, Mm-hmm. वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाज बिग थिंग कि जैसे हम दिल्ली जाते थे, वहां पे हमें लोग बोलते थे भैया ये ना बहुत सही बिकता है आप इसको लेके जाओ, तो हम उनसे वो चीज खरीद लेते थे। फिर बाद में हम यहाँ पे आते थे और हमारे वो सामान बिकता नहीं था, तो हम उसमें कई लाखों रुपए हमने उसमें गवाए। देन भी Mm. हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया कि पहले कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो हम उसकी पहले एक इनिशियल टेस्ट रन करेंगे, अगर हमें उसका रिस्पॉन्स सही लगता है देन ओनली वी विल बाय इन द बल्क। तो Okay. अब ये फेलियर भी अगेन अपने लिए एक लर्निंग का वो बन गया। Learning हो गया. तो Yeah. दैट्स हाउ यू फेल एंड यू लर्न, यू फेल Learn. एंड लर्न। Okay. तो इससे एक शब्द में ये कहा जा सकता है कि failures are a learning. So as an डेफिनेटली, entrepreneur, please don't hesitate to take any steps. It may fail, but it would give you a learning as well to move on for the future. डेफिनेटली मैम। आशीष, या आशीष एक पार्टिसिपेंट है जिनका कहना है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं आप कहाँ से परचेज करते हैं, क्या ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं? तो हमारे जैसे अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो मिलियन केसेस का जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज नॉट मेड फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया में अभी तक कहीं पर भी पूरे अक्रॉस द कंट्री वो क्वालिटी अभी नहीं बनती है जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। बिकॉज अगर आप हमारी वेबसाइट चेक करोगे तो वो बहुत प्रीमियम प्राइसिंग पे हम सेल करते हैं, प्रीमियम कॉस्टिंग पे सेल करते हैं। तो उस इंडिया में बनने स्टार्ट हुए हैं बट बहुत बेसिक वाली चीजें। तो हमारा जो सारा प्रोडक्ट है जो फोन केसेस वाला डेट कम्स फ्रॉम चाइना ओनली। एंड हमारे पास अदर ब्रांड्स है, जैसे वी हैव अनदर शूज ब्रांड, तो उसके लिए वी गेट प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम आगरा एंड जलंधर, तो वो इंडिया मेड है। देन अगेन वी हैव अनदर ब्रांड OMGS इंडिया, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया मेड है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग चीजें हैं, कुछ इंडिया से भी आते हैं एंड कुछ इंडिया से पॉसिबल नहीं है। वी वांट टू डू फ्रॉम इंडिया, बट हम्म. करंटली वो क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। नहीं अवेलेबल दैट है. इज द रीजन फिर हमें अदर कंट्रीज से करना पड़ता आपने बोला कि आप पार्टनर है 3 डायरेक्ट टू कंज्यूमर फैशन एंड होम ब्रांड्स में, है। तो राइट ये मैम। कौन से प्रोडक्ट्स इसमें हैं जिसमें आप पार्टनर हैं? एक मैंने आपको बताया कि शूज का हमारा ब्रांड है, तो हाँ. वी वो एक कंपनी है जिसमें हम पार्टनर हैं। हम्म. देन अनदर एक हमारा एक्रेलिक फोटो फ्रेम्स हम सेल करते हैं। जैसे ग्लास होता है ना, कांच होता है, उसी तरीके का हम्म. एक प्रोडक्ट होता है एक्रेलिक, जो हम्म. अनब्रेकेबल होता है, जो गिरने पे टूटता नहीं है या फिर उसमें कुछ स्क्रैच वगैरह उतने ज्यादा नहीं पड़ते हैं। तो हम्म. हम उसके ऊपर फोटोज प्रिंट करके सेल करते हैं। दिस कैटेगरी गॉट स्टार्टेड विद अस ओनली इन इंडिया। पहले ओके. US वगैरह में चलता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा नई प्रोडक्ट रिसर्च में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ हाँ. नया ढूंढना, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हमने US में देखा वो चीज चलते हुए, तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई इन इंडिया। इनिशियली कोई भी उसको बेचता नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया है। नाउ दैट प्रोडक्ट इज डूइंग फिनोमिनल बिजनेस, एंड अब कुछ और लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया है, बट द कैटेगरी इज ग्रोइंग एट रैपिड स्पीड। ओके. जी। सो वो ये जो वो आई वुड रेकमेंड एवरीवन की चेक करना आप OMGS.in।
इज द वेबसाइट, जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो गिफ्टिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके किसी भी फ्रेंड का, आपकी मम्मी का, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी का अगर बर्थडे हो या एनिवर्सरी काइंड ऑफ चीज हो, तो डेट इज अ वेरी कूल थिंग टू गिफ्ट। बहुत अच्छा वो किसी को भी फीलिंग I'm देते हैं। sure the participants will go through this website and they will be interested in the products as well. So now we come to another question, the last part of the question. So what would be the pointers or what would be your say kind of uh, key elements that you would put forward to the participants or the people who want to start their own venture, कि ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखें जब भी आप प्लान करते हैं अपने वेंचर का। बिल्कुल। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि डोंट ओवर थिंक एनीथिंग। ये बहुत लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, बहुत लिटरली, बट वो ओवर थिंक करके उस चीज को रून कर देते, खराब कर देते हैं। एंड आई वांट टू टेल एवरीबडी देयर इज अ थिंग, कि कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है ना, डेट कैन जस्टिफाई एनीथिंग। अगर आप ये चाहते हो कि आपका दिमाग आपको ये बताए कि तुम्हें ये क्यों करना चाहिए, तो दिमाग सैकड़ों रीजन दे सकता है, भाई तुम्हें ये इसलिए नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं इसलिए नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। एंड क्यों नहीं करना अगर चाहिए। आपका मन है, एक आपने अगर आपने बना लिया कि करना चाहिए, और आप फिर अपने दिमाग से पूछते हो कि भाई क्यों करना चाहिए, देन अगेन इट कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ रीजन जिसकी वजह से आपको करना चाहिए। तो हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। इफ यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, तो थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करा और उसके बाद में यू कैन टेस्ट इट। अगर फेल भी होते हैं ना, जब बिगेस्ट थिंग इज कि फेलियर की कीमत बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू जो आपने अपॉर्चुनिटी मिस करते हो। उसका कहते हैं कि मोर इज लॉस्ट इन इनडिसीजन और स्मॉल थिंकिंग एज कंपेयर टू इन रॉन्ग डिसीजंस। This is literally बहुत सही something बात very है। important factor for everybody to consider. या Failure is not a problem. In fact, failures are the stepping stones for the success. If somebody is never failed, has never failed in their life, you can just tell कि ये बंदा एवरेज या बिलो एवरेज रहने वाला है, क्योंकि ये कभी फेल नहीं हुआ। बिकॉज फेल सिर्फ आप तब होते हो जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप कोई ऐसी चीज करते हो जिसके लिए आप कैपेबल नहीं हो या जो आपको नहीं आता है। एंड व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओनली देन यू ग्रो। जिसको भी जो भी चीज आती है, अगर वो वही रिपीटेडली करता जा रहा है ना, तो दैट इज द मेयर लेबर जॉब। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। क्योंकि आपने आज क्या सीखा, आपने क्या लर्न किया। अगर आप एवरीडे कुछ लर्न नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे हो, या कुछ टेस्टिंग, कुछ फेलिंग, कुछ पास नहीं हो रहे हो, तो फिर आप बस वो जो होता है ना, कहते हैं कि वो जो तालाब का पानी जो खड़ा रहता है वो सड़ खड़ा जाता है, रहता है, हाँ और जो सर। चलता रहता है जिसमें वेव्स होती हैं, उछल कूद हो रहा है, कुछ पानी इधर गया, कुछ वहां गया, तो वो हमेशा वो पानी कभी भी खराब नहीं होता, और यू कैन एनी टाइम ड्रिंक दैट थिंग। हाँ, इससे मुझे याद आता है थॉमस एडिसन है जो वो हाँ कहते जी। हैं कि द वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन यूजिंग ऑफ इट, यस यस, डेफिनेटली, दैट्स अदरवाइज व्हाट इट्स ही इट्स मेंशन। इट्स अ सिट। या उसकी कोई कीमत नहीं, वो जीरो है वो। अगर आपके पास जीनियस से जीनियस आइडिया हो, लेकिन अगर आप उसको ग्राउंड पे ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो तो इट्स कोई नथिंग। कोई फायदा नहीं है उस आइडिया का। जी तो पहला बिल्कुल। चीज आपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बोला कि डोंट ओवरथिंक, एग्जीक्यूट योर आइडिया, बिल्कुल। failures are not to be taken in a negative way, think failures from a positive perspective कि they are for learning, यस पहला चीज यस है। सेकंड जो आप देना चाहेंगे एक सेकंड एडवाइस। इज टू, आई वुड से, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। एक ना बुक है, उसका नाम है, कहते हैं स्टार्ट विद व्हाई। इफ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, कि क्यों आप करना चाहते हो, एंटरशिप क्यों करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज भाई कृष्ण ने आके बोल दिया या मैडम ने एक सेमिनार करवा दिया जिसमें किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, अगर यही एक एकमात्र रीजन है, देन यू शुड नॉट गो फॉर इट, बिकॉज इट्स सो चैलेंजिंग, वेरी टफ। इट इज सिंपल बट इट इज टफ, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस होगा, आपको कई चीजें ऐसी होंगी जो बहुत इजी दिखने वाली प्रॉब्लम होंगी। तो आपके पास में अगर एक रीजन नहीं है ना, देन यू विल गिव अप, सूनर और लेटर यू विल गिव अप। क्योंकि मोटिवेशन डोंट लास्ट लॉन्ग। अभी अभी इस बात को सुन के कि भाई यार ये बंदा तो क्या बातें कर रहा है, 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, तो मैं ये भी कर तो सकता करना, हूँ, है मैं भी ना, कर बस इतना ही सकता। इतना ही दिस सोचो, इज मैं भी कर मोटिवेशन, सकता दिस इज हूँ। मोटिवेशन। बट इफ यू हैव अ रीजन, और रीजन कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि हम्म मैं आपको बोलूं, आप यू कैन मेक योर रीजन फॉर योर सेल्फ। जैसे हम्म मैंने आपको बताया कि
इवन दो माई फादर वॉज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन थी। आई हैड नेवर इवन गॉट 1 रुपी इन पॉकेट मनी, मुझे पता भी नहीं था पॉकेट मनी क्या होता है। तो एक काइंड ऑफ वो था कि भाई मेरे दोस्त ना रोज लंच में वो कुछ हॉट डॉग समोसे वो चीजें खाते थे, अब वो मेरे साथ कुछ शेयर कर लेते थे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं कभी खरीदता नहीं था बिकॉज मेरे पास उस चीज के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन जब वो चीज होती है ना तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि यार एक दिन मेरे पास भी पैसे होने चाहिए। हम्म ओनली दिस वाज ओनली रीजन। और जब हमने ये चीजें स्टार्ट करी तो हमने पैसा कमाना स्टार्ट किया, देन वी अंडरस्टूड कि इससे तो यार मैं लोग, मेरा आज कोर बिलीव है कि लोगों की वैल्यू लाइफ में हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सोचो अगर आज 100 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं और 250 लोग में हमारी पार्टनर कंपनीज में काम कर रहे हैं, एवरी पर्सन के फैमिली में कम से कम 4-5 लोग होंगे। ऑन एन एवरेज हर इंडियन फैमिली में 4-5 लोग होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर 250 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, विच मीन्स की 1000 पीपल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अस। and on this एंड दिस organization, इज अ yeah. दिस इज अ बिग रीजन टू वर्क फॉर। आप चाहते हो हम्म कि लोगों की लाइफ, कई लोग ऐसे हैं right. जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बट आपने अगर उनको उनकी जैसे होता है ना कि उनके टैलेंट को यूज ले लिया, तो आप उनको बहुत अच्छा काम करवा सकते हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज हो सकता है उस बंदे को जिंदगी भर ईंटें उठानी पड़ती, लेकिन हमने वेयर हाउस में किसी बंदे को वेयर हाउस की जिम्मेदारी दी। अब नाउ ही इज ओनली 5th और 6th पास, बट ही इज मैनेजिंग वेयर हाउस सो वेल। इवन हमने लिटरली आई एम टेलिंग यू, हमने एमबीए का पर्सन हायर किया, एमबीए वाला पर्सन उस 5th क्लास वाले पर्सन को एक भी चीज में आउटबीट नहीं कर सका, बट हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी। दैट गाय वाज वर्किंग एट अ टीवी स्टोर फॉर 8,000 रुपीज। नाउ ही इज गेटिंग 45 अराउंड समथिंग इन सैलरी। एंड एमबीए वाले पर्सन कुछ बोलना पड़ा कि सर ही इज डूइंग टू गुड, मैं इसमें मुझे लगता नहीं कुछ वैल्यू मैं ऐसे खास ऐड कर पाऊंगा। तो अब वो सोचो कि उस पर्सन के पास नॉर्मली वो टीवी की दुकान में काम करता रहता, वो 4 साल में वहां पे क्या होता है, हर साल अगर पैसे बढ़ते हैं तो 500 बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ते। बट हम्म हमने एक अपॉर्चुनिटी पैदा करी ऐसी कि जिसके लिए उस पर्सन का टैलेंट काम आया, एंड टुडे ही इज अर्निंग सो yes, वेल, ही इज लिविंग अ yeah. वेरी गुड लाइफ। हम्म तो यू हैव टू हैव अ रीजन। सेकंड पॉइंट इज, आप, अब ये कुछ भी हो सकता है, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, आपको आपको दुनिया घूमनी है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अगर किसी को ट्रैवल पसंद है ना तो वो मर मर के ट्रैवल नहीं करे, ठीक है ना, उसको सही खुल के बात है। ट्रैवल करना। अगर मेरा मन है कल मुझे बनारस जाना है तो मैं अभी गाड़ी उठा के मैं कल सुबह बनारस पहुंच सकता हूँ। हम्म दैट्स वो जैसे होता है ना फ्रीडम होना, मेरा रीजन yeah. है फ्रीडम। मैं हम्म दूसरे लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और सुनने में ये लग सकता है कि भाई ये जब कोई बंदा पैसे कमाने लग जाता है ना तो वो इस तरह के ही ज्ञान देना शुरू कर देता है, बट yeah. दिस इज नॉट, लिटरली दिस इज नॉट। ये ऐसा है कि ये रियल थिंग है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट मेड हम्म अप। एंड मैं, मेरा कोई, क्योंकि मुझे ये सब बोल के किसी को मोटिवेट करके मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आप लोगों को रियल पिक्चर बताना चाहता हूँ, फ्रॉम वेयर आई हैव कम और अभी हम कहाँ आए हैं। हाँ, एंड द थिंग इज कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया जो हम कर सकते हैं। आई एम लिटरली, आई वुड से कि अभी हम नेट प्रैक्टिस में हैं, अभी जो रियल गेम है वो होना भी बाकी है। हम बहुत बड़े बनेंगे लिटरली, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल कि यू विल से वन डे कि भाई ये बंदा हमारे उस पे आया था और इसने बोला था ये सब चीजें, और देखो आज ये कर रहा है। और ये सबको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और एक अगर आपके आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपके अंदर वो बात है, है तो या डेफिनेटली आपको करना चाहिए। सो बिकॉज लाइफ में एक सर्वे, मतलब कई सर्वेज हुए हैं दुनिया में जिसमें लोगों को पूछा गया ओल्ड एज में, जो जो अपने डेथ बेड पे थे, कि व्हाट इज योर बिगेस्ट रिग्रेट फॉर द लाइफ। तो मैक्सिमम जो रीजन अभी तक सामने आया है कि उन्होंने कोई ऐसा रीजन दिया है कि आई वॉज, मुझे वो करने का मन था, मैं वो था, करना चाहता हाँ था मन बट था मैंने नहीं कर नहीं किया, पाया। एंड टुडे आई रिग्रेट दैट मोस्ट। हम्म तो आई डोंट थिंक कि जो लोग एटलीस्ट इस कॉल पे हैं, चाहे 10 लोग हों चाहे 5 लोग हों, बट जो सुन रहे हैं वो इस चीज के बारे में कुछ सोचें। और एक भी पर्सन इसको सुन के कुछ भी करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि एटलीस्ट यार चलो हमारा 1 घंटे का मेरी एफर्ट जर्नी का कुछ इम्पैक्ट आया बेनिफिट हुआ। दूसरों के ऊपर, या डेफिनेटली। सो वेरी बिल्कुल। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय यू Kishan, that be humble and always try to implement your ideas, take a leap of faith. ऐसा नहीं कि आप बंद करके ऐसे ही छलांग लगाओ, बट सोच समझ के छलांग लगाइए। अगर आपको कोई
अपना वेंचर शुरू करना है। सो बी एंटरप्राइजिंग, बी रिस्क टेकिंग, बी परसिस्टेंस। सो परसिस्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी वेंचर को शुरू करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल And have a very healthy work-life balance. So success जब भी हो, छोटे-छोटे milestones आप achieve करें, तो आप जरूर उसको celebrate करें। So I hope all the participants would have benefited from this wonderful session that has been done today. And thank you, Mr. Kishan Kumar. And I hope we will be meeting again on this virtual platform whenever required to conduct these kind of expert sessions. And so also, if there are any participants who are thinking in terms of starting their own venture, coming ahead with execution of their idea, then we can connect with Mr. Kishan Kumar. You can send your emails to the Innovation Council, and your product concept or idea can be put forward to Mr. Kumar for his Right. assessment. Right. So right, thank right. you, and goodbye to all of you. We'll be meeting on these kind of sessions quite often. So Right. thank you, Mr. Kishan. Thank you for having me, and I really wish everybody a good luck. And मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों ने नया सीखा होगा. And if you guys have learned anything new, then please go to your LinkedIn and write a post about it कि कुछ भी आपको inspiring लगा, अच्छा सीखा हो, and tag me here. Thank you everybody. Thank you, Kishan.